Today, we are gathered here to interact with someone who had the courage to continue, the patience to persist, and the determination to succeed in one of the toughest examinations in the country, the Civil Services Examination, conducted by the Union Public Service Commission. For every UPSC aspirant, there comes a phase when the syllabus feels endless, results feel uncertain, and motivation starts fading. At such moments, meeting someone who has actually achieved this goal becomes the biggest source of inspiration. And today, we are truly proud to have among us a distinguished alumnus of our college who secured All India rank 189 in UPSC CSE 2025 examination. Please join me in welcoming Mr. Aditya Pathak, an alumnus of Shahid Bhagat Singh College, whose journey reflects discipline, dedication, and determination. Let us welcome him with a big round of applause. I would like to respectfully acknowledge the presence of our esteemed dignitaries, respected Professor Poonam Sharma Ma'am, Secretary Staff Council, and respected Mr. Naman Jain Sir. Now to express our gratitude and honor our distinguished guest, I would like to call Professor Poonam Sharma Ma'am to felicitate Mr. Aditya Pathak with bust as a token of appreciation for his remarkable achievement and for taking out his valuable time to guide us today. Now, I would like to call upon Ronak Chauhan, General Secretary, to present a planter to our esteemed guest. I would like to call Mr. Lakshit Chauhan to present a bouquet to our guest. Heartiest congratulations on such a great achievement, sir. Your hard work, perseverance have truly paid off. You are a great inspiring figure for all of us. Now, I would like to invite Professor Poonam Sharma to deliver a welcome note for our designated guest. Very warm welcome and wonderful good afternoon to dear students. I'm sure you all are very, very excited to listen to Mr. Aditya and his achievements. And we at Bhagat Singh College really feel proud that our alma mater, Aditya, has done a very big achievement. So congratulations from Bhagat Singh College student fraternity. We are really proud of you. And when our students does some big achievements like this, bring laurels to the college, it is not only that, it is the success of your personal endeavors, right? Your movement, upscale movement in your life, but also it adds a lot of value to the institution's name. So students, when we say, in a cricket match, apni century bhi banao aur desh ko bhi jitao, right? So when you work on your century, everybody can't make the century, right? When you make your century, it is your personal achievement and you make your country win, your team win. So it's the same situation when our students does something, it's their personal growth and it adds to the growth of the institution as well. Today is a wonderful opportunity for you students listening to Mr. Aditya and how he achieved. I'm sure today's interaction with him will make you understand a lot of nuances
and nitty-gritties of UPSC and what lessons can you learn from his experience. And I'm sure many of you must be economics students here. How many economics students here? Okay, one. I was expecting more of the economics students here, since Mr. Aditya is from economics department and one of his subjects in the UPSC was economics. So it would have been really great if more of the economics students would have been here to learn the subject matter and the concerns and the cautions and precautions of studying a particular subject. And I really want that आप लोगों का interaction, and each of you must not hesitate to ask any kind of a question, right? This session is for you, and of course for celebrating Mr. Aditya's success and happiness in his career. With these words, I welcome you, Mr. Aditya, and we're really proud of you. We are very happy that for your achievements, and may God bless you. And this, statue, the bust of Bhagat Singh, will keep reminding you the big challenges and how to achieve and fight with those challenges and be the winner in your career and in your life. With these words, warm welcome. We're really proud of you. Thank you, ma'am. Now, the moment we all have been waiting for. Success in UPSC is not just about knowledge. It is about consistency, patience, failures, and rising again. To share his journey, preparation strategy, challenges, and lessons from his incredible experience, I warmly invite Mr. Aditya Pathak sir to address the audience. So again, good afternoon, everyone. First, I would like to thank the management of the institution for inviting me and being part of this interaction session. I would like to thank the principal, Professor Arun Kumar Atri, the acting principal, Professor Poonam Sharma, and the coordinator of this initiative, Mr. Naman Jain. So thank you very much for inviting me and for allowing me to be part of this interaction session. After that, I think that my interaction with you would be more fruitful. First of all, should I continue in English or should I switch between English and Hindi? हाँ? Bilingual, ठीक है. तो ज़्यादा fruitful ये रहेगा कि हम लोग interaction session करें, Q&A session करें. अपना एक brief introduction दे रहा हूँ. मैंने अपनी जो formative education है वो शिशु विद्या मंदिर पिथौरागढ़ से की है. So originally I'm from Pithoragarh, which is a border district in Uttarakhand. It borders China to the north and Nepal to its east. I did my schooling from Pithoragarh itself. उसके बाद डॉन बॉस्को स्कूल से मैंने अपना क्लास 12th किया. उसके बाद मैंने अपना इको ऑनर्स यहाँ भगत सिंह कॉलेज से किया और उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स MSc इकोनॉमिक्स IGIDR मुंबई से किया, जो कि एक RBI द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूट है. उसके अलावा मेरा ऑप्शन सेम ही था, इकोनॉमिक्स. और अगर देखा जाए मोटिवेशन की बात की जाए तो मोटिवेशन में मोस्टली 2 या 3 मोटिवेशन थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों मेरे पेरेंट्स पब्लिक सेक्टर में हैं, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हैं. तो मुझे नहीं पता और घरों में कैसे रहता है, लेकिन हमारे वहाँ शाम को जब बैठते थे खाने के बाद तो पब्लिक स्पेसिफिक इश्यूज पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी. जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली एक ऐसे एरिया में जो काफ़ी माउंटेनियस है जहाँ पे टीचर्स जाने से कतराते हैं. हेल्थ सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स एब्सेंटिज्म काफ़ी प्रेवलेंट है. अगर यहाँ पे किसी ने हेल्थ इकोनॉमिक्स लिया है तो इंडिया का जो रूरल हेल्थ स्ट्रक्चर है वो क्या है. बेसिक लेवल पे सब सेंटर होता है, फिर PHC, CHC, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. काफी हद तक चांस है कि जिस भी स्टेट से आप आते होंगे जो लोअर लेवल है वहां पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको. तो ये सारे डिस्कशन जब घर पे होते थे साथ में, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको डैमेज, एज अ सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट्स प्लस ड्यूटीज, वो सारे डिस्कशन घर पे रहते थे क्योंकि दोनों पेरेंट्स ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में है. तो एक मोटिवेशन बचपन से वैसा ही रहा. दूसरा, जिस स्कूल से मैं आता हूँ डॉन बॉस्को स्कूल, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ECA पे इक्वल फोकस दिया जाता था. ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें जैसे डिबेट हो गया, एक्सटेम्परी जो बेसिकली तुम्हें ऑन द स्पॉट एक टॉपिक मिलता है उसको बोलना पड़ता है. उसके अलावा क्विजेज हो गए, जिसके प्रिपरेशन में अल्टीमेटली तुम वही चीज करते हो जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में करते हो. क्योंकि क्विज का जो यहाँ पे किसी ने मेंशन किया था एक एग्जाम को एंडलेस के तौर पे,
उसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा। इसका सिलेबस क्या है, बाउंडलेस है। अगर यहाँ पे कोई मैथ्स वाला है तो सेट क्या होता है, विद बाउंड विदाउट बाउंड होता है, उसका कोई बाउंड नहीं है इसके सिलेबस का। तो क्विज का भी वही रहता है, कोई बाउंड नहीं है उसके सिलेबस का। जब कोई क्विज के लिए प्रिपेयर करता है तो सेम बट छोटे स्तर पे, नॉट एट द लेवल ऑफ यूपीएससी और सम स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो स्कूल में काफी ऐसे ईसीए वगैरह था, तो वहां से भी मेरा इंटरेस्ट जागा। एंड फाइनली माई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स विच आई परस्यूड इन दिस कॉलेज एंड बियॉन्ड। इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से केवल एक मैम उनका है वहां पे जो बैठी है, उसके अलावा मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज इलेक्टिव वगैरह पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स मैंने लिया था, वो एक अलग क्वेश्चन है कि ऑप्शन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं शायद उसके लिए सूटेबल आदमी नहीं हूँ वो आंसर करने के लिए। किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसने 2-3 सब्जेक्ट लिए हैं। इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा, मैं थोड़ा वो भी हूँ जिसे हठी कहते हैं, कि मैं इकोनॉमिक्स से ही कंटिन्यू करूंगा इवन दो उसमें बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। उसके पीछे कारण बताता हूँ। अगेन उसका मोटिवेशन वाई पब्लिक सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट क्या है, आपको एक टूल देता है, एक फ्रेमवर्क देता है किसी भी सिचुएशन को एनालाइज या असेस करने का। अगर आप बेसिक कोई सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखो, उसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपने वर्ड सुना होगा, डिमेंशन वर्ड सुना होगा, कि आपका आंसर मल्टीपल डिमेंशन में, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में होना चाहिए। उसका एक एस्पेक्ट यूजुअली मेरे साथ पेस्टल अप्रोच में ई यानी इकोनॉमिक रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स अपने आप में एक टूल देता है आपको, डिमांड सप्लाई हो, इलास्टिसिटी हो, इंसेंटिव्स हो। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट एक जो मैगजीन है उसमें एक आर्टिकल आया था कि इवन दो वेस्टर्न कंट्रीज ने सिगरेट्स पे अच्छा खासा टैक्स लगा दिया है, फिर भी उनका सिगरेट रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स से बच्चा है वो उसको आराम से समझ सकता है अगर उसने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, और वो पब्लिक पॉलिसी में बहुत काम आता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा एक सेस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसने जो पुराना वाला जीएसटी सिन जीएसटी सेस था सिगरेट्स पे, उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगेन तुम उसको आंसर कर सकते हो यूजिंग इकोनॉमिक्स एज अ टूल। मोरालिटी अलग चीज है, पब्लिक मोरालिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट इकोनॉमिक्स गिव्स यू अ टूल और अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट होता है गेम थियरी। अगर आपको समझना है कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी है वैसी क्यों है, व्हाई इज देयर अ करंट कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज, तो वो गेम थ्योरी काफी तक आपको समझाता है। गेम थ्योरी ने उस पर काफी काम किया हुआ है। सो बेसिकली 2 और 3 ये कारण थे, 2 या 3 जिस कारण से मैंने पब्लिक सर्विसेज के लिए तैयारी की। अगर आपको थोड़ी और ब्रीफ जर्नी चाहिए तो इसी कारण मैंने एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, टेक्निकल एग्जाम IES इकोनॉमिक सर्विसेज, वो दिया था। वो रिटर्न मेरा ऐसे कभी क्लियर नहीं हुआ। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एक एग्जाम दिया है DPR नाम से, जो ग्रेड बी होता है। अगेन उसका डोमेन सेम यही है, बट इट इज मोर कन्फाइंड टुवर्ड्स मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो करता है क्यों करता है, ठीक है, तो वो उस साइड पे ज्यादा है DPR। और उसके अलावा मैंने स्टेट पब्लिक सर्विसेज एग्जाम भी दिए हुए, अपना जो उत्तराखंड है UKPSC का। तो ओवरऑल ये मेरा रफली जर्नी रही है और ये मेरा मोटिवेशन रहा है। अगेन जैसे मैंने बोला कि मेरा यहाँ पे आना फ्रूटफुल ज्यादा होगा जब हम एक इंटरेक्टिव सेशन में इन्वॉल्व हो। तो अपना मैं ये वाला इंट्रो वाला पार्ट थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगेन क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, डोमेन नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगता है पूछिए। मैं ज्यादा आपको हेल्प कर पाऊंगा इस सेंस में कि क्या कैसे पढ़ना है इन कंपैरिजन टू अगर आप मुझसे डायरेक्टली ये पूछोगे कि प्री कैसे निकालना है। आई हैव नो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन कि प्री कैसे निकालना है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेंस कैसे निकालना है, अगेन आई हैव नो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। IGP इंटरव्यू कैसे निकालना है, नो आंसर। देयर इज नो शॉर्ट सकिंग आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, आप उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे ये अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, या ये अगर हमको फॉलो करना है तो कैसे फॉलो करना है। वो ज्यादा एक तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा इन कंपैरिजन टू आस्किंग plain and headline questions like how to clear this, how to clear that. So with this, I end my opening remark, and I invite you and I encourage you to pose questions so that we can engage in a healthy discussion. Thank you, sir. जी मुझे जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं। मेरा कोर्स ज्योग्राफी ऑनर्स है। जी। माय नेम इज सूर्यांश राय। ओके। एंड मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा जोर से क्या हमें प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए? प्लीज सर। दिस इज ये थोड़ा सा मतलब क्या जेनेरिक आंसर है इसका। एक इंग्लिश में एक फ्रेज होता है डबल एज सोर्ड, हिंदी में शायद 2 धारी तलवार भी कहते हैं उसको। मतलब किसी भी कोई भी चीज के 2 साइड्स होते हैं। अगर मैं आपको एक ब्लैंड आंसर नहीं दूंगा कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है वैसा होता है। आप जाके 3 या 4 साल पहले टॉपर थी मैम, उनका इंटरव्यू पढ़ोगे तो उनका ये स्टेटमेंट था, फिर मुझे बताना कि मैं दिन में 12 घंटा पढ़ती थी या 10 घंटा पढ़ती थी, और बाद में स्ट्रेस कम करने के लिए मैं बस आधा घंटा रील्स देखती थी, उससे मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता था। दोबारा 1 घंटा पढ़ती थी, सो जाती थी। अगेन शी यूज्ड टू कम बैक, स्टडी फॉर 10 आवर्स
and then watch reels as a means of recreation. दूसरा ये हो सकता है, अगेन ये वाला तो पहला रियल चीज है, आप जाके देख सकते हो नेट पे. दूसरा है endlessly watching reels. ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप इंडियन सोसाइटी प्रिपेयर कर रहे हो, GS1 प्रिपेयर कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ ऑफ इंडिया या कहीं के भी यूथ. सिंपल चीज है, जो आप देख रहे हो, अगर आप उसको लगातार देख रहे हो बहुत छोटे फॉर्मेट में, 5 सेकंड. पहले क्या था, यूट्यूब में 10 मिनट 12 मिनट हमारा उससे अटेंशन स्पैन अच्छा था, रहता था 10 मिनट कोई चीज किसी चीज से एंगेज करने का. आज के डेट पे रील्स कितना है, 5 सेकंड 6 सेकंड, आप बस उसको ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे हो. वो चीज एक पॉइंट के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करना शुरू कर देती है. आपका अटेंशन स्पैन केवल उतना ही रह जाता है. यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको अटेंशन स्पैन थोड़ा वाइड चाहिए. अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप कितना उससे एंगेज कर पा रहे हो, कितना उसके आसपास डिमेंशन ड्रॉ कर पा रहे हो. अच्छा, आर्टिकल में केवल लिखा है पॉलिटिकल डिमेंशन, आप बैठे बैठे वहां कितना उसको जोड़ पा रहे हो इकोनॉमिक डिमेंशन से, टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन से, जोग्राफिकल डिवीजन से, जो आपका ह्यूमन जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी. तो एंडलेसली स्क्रोलिंग इस एबिलिटी को खत्म कर देता है और कोई दिक्कत नहीं है उसकी. तीसरा चीज अगर आपको जानना है, इसके बारे में पढ़िएगा. एक काफी फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉनथन हाइट, NYU में है. उन्होंने काफी इसमें काम किया हुआ. एक बुक है द एंग्शियस जनरेशन नाम से. एंग्जाइटी बढ़ती है और कुछ नहीं होता है. अगेन देयर आर अ फ्यू फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल. उन्होंने क्या दिखाया, ये चीज दिखाई, सो तुम कोट कर सकते हो आंसर में. स्टार्ट यूजिंग दीज कोट्स इन योर आंसर्स. उसने क्या दिखाया उन्होंने कि जब ये सोशल मीडिया सब कुछ आया तो देयर वाज अ स्ट्रिक्ट स्किज्म. जो लड़के थे वो दे वेंट मोर टुवर्ड्स यूट्यूब एंड गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एंड गर्ल्स वेंट मोर टुवर्ड्स विजुअल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड स्नैपचैट. ठीक है, और वो एक ऐसी एज होती है जिससे आप फेमिलियर हो गए और शायद आप कंकर भी करोगे, जब अटेंशन चाहने की जो वो होती है, एक इच्छा होती है, ज्यादा होती है. तो उससे कई सारी चीजें होती हैं, जो एक आपका ये लाइक वाला बायस है, चेजिंग लाइक्स. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स प्लेइंग विद योर माइंड. ठीक है, सो देयर आर बोथ साइड्स टू इट. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है. डू यू वांट टू यूज इट फॉर रिक्रिएशन और डू यू वांट इट टू कंप्लीटली चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स. आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा उसमें. कोई और सपोर्टिंग क्वेश्चन? यस, डिपार्टमेंट ओके. सर जैसे मैं नेक्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है यूपीएससी, लेकिन काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स उन्होंने ये सजेस्ट करा कि यूपीएससी की तरफ जाके ना जाके यूपीपीएससी और एसएससी की तरफ जाके, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा सिलेक्शन रहता है. यहाँ पे एक लक भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है. ये क्वेश्चन सबने सुना? क्वेश्चन का नेचर ये है कि ये सर गए कोचिंग सेंटर के पास, उन्होंने बोला कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है. उन्होंने बोला क्योंकि ये थोड़ा टफ है और एग्जाम्स थोड़े इजियर है, तो आपको वहां भी ट्राई करना चाहिए. सिंपल आंसर है. खुद से एक क्वेश्चन पूछो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हो, पब्लिक सर्विस करना चाहते हो? ठीक है, ये दो थोड़ी सी अलग चीजें हैं. होने को सारी पब्लिक सर्विसेज भी गवर्नमेंट सर्विसेज, लेकिन सारी गवर्नमेंट सर्विस इस सेंस पब्लिक सर्विस नहीं है जिसको तुम प्रिपेयर कर रहे हो. अगर तुम्हें केवल तुम्हारा सिंगल एम है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, और तुम्हें केवल गवर्नमेंट सर्विस करना है, यू शुड इंडीड हैव अ प्लान बी, अ प्लान सी एंड प्लान डी एंड सो ऑन. अगर तुम्हारा सिंगल एम क्या है, सरकारी जॉब करनी है सिक्योरिटी के साथ. अगर तुम्हें पैशन है पब्लिक सर्विस का, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फॉरेन सर्विस ऑफिसर, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, पुलिस सर्विस ऑफिसर, फिर ये वाला रीजन इट डज नॉट होल्ड डाउन कि आपको वो भी देखना चाहिए, या कोई भी आप प्लान बी, सी, डी, आप एसएससी की तैयारी भी करो. वो तब होता है जब आपका सिंगल एम क्या है, फैमिली से भी एक प्रेशर है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप वहां उसको देखो. लेकिन अगर आपका एम पब्लिक सर्विस है तो वो सिंगुलर मतलब सबसे हाईएस्ट आप प्रायोरिटी उसको दोगे. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका 70% यूपीपीसीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा. अगर मैं उत्तराखंड से हूँ, आपका 70% उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा. थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका एम, आप दिल्ली यहाँ पहुंचे हो, कहाँ से हो आप? यूपी से आप दिल्ली पहुंच गए हो. अगर आपको यूपीपीसीएस की तैयारी करनी थी तो शायद आप बेटर कहाँ पे होते? यूपी में ही होते. आप दिल्ली आ गए हो, इस एक्सपोजर का वो यूज करो, इस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको यूज करो, एंड प्रिपेयर ओनली, प्रिपेयर इन अ मैनर की जिसमें तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, यूपीएससी को, और उसके साथ साथ तुम अपना स्टेट का भी देख रहे हो. ठीक है, तो ये मैं इसमें बोलूं. आप बोलो थोड़ा जोर से. Okay. And what you do for. And my second question is that we like
start from GS1 or just directly move to the upper and then move to the GS2? So important to get this. So, okay. Can I answer in English only or in bilingual? In English. So what he's asking is about the initial preparation strategy. Your first question was about how to approach videos and how to chronologically adjust your study plan. So I have myself never attended any coaching institute, so I am not in a very good position to answer how you should balance coaching videos with your study material. But I can say, what I can say is this, regarding study material, the entirety of internet is right now filled with material which you can use at the drop of a hat, right? So what you can do is, you can start with some very basic books. For example, in geography, you can start with NCERT from class 6 till 12. That is compulsory. But that formula does not apply to other subjects. You should not be wasting too much time on NCERT for economics. That's not very useful, at least for UPSC. It's useful for clearing your concepts, but not for attempting questions in UPSC, barring a few prelims questions. Then straight away move to some standard sources. For example, in geography, if you want to attempt very good in GS1 mains, you should refer to a good book. People from geography department would tell you that it would be Majid Hussain. But a slightly easier book would be something like PMFIS. All right, it presents the entire text from Majid Hussain in a very interactive fashion using diagrams which are colorful. Then regarding your second question, optional. Again, as I said, I just had one optional, economics, so I cannot vouch for what you should do in case of history. But if you've taken history, I think that you'll have to study it separately. Why? Because the only place where it would be useful would be in GS1, modern history. If you're taken, for example, if somebody has political science, then it already covers your GS2 paper. So that person doesn't have to put much extra effort in preparing GS2. But for a person who's taking history, you'll have to study not only your history, but also GS separately. Because if you have been following the trends, then UPSC is not asking very many questions from modern history, right? Even this year or even last year. So in that case, I think you'll have to put in double effort, which is a bit unfortunate and almost equivalent to what I had, economics. So studying economics as an optional did not help me in other GS subjects very much because the content is not overlapping. We can discuss about the books later on because that's a very detailed answer. Going through each and every subject, then laying out what the basic text should be, what the advanced text should be, would take a lot of time. So I think we can do that later on, one-to-one. Yes, ma'am. Sir, I wish to ask that is the bachelor's level of study enough for the optional? So the question is economics specific because what I have come across the optional one जो होता है वो bachelor's के level से निकल जाता है, but जो optional paper 2 होता है economics का वो उसके लिए masters करना जरूरी होता है. So I'm skeptical of choosing economics as the optional. Sure. I cannot say whether you should take up economics or not. That's totally up to you. But if you take economics and just optional one, graduation is necessary but not sufficient. Because if you look at the questions that they've been giving, they're asking at a level which is somewhere in between graduation and post-graduation, if not entirely post-graduation. So you'll have to read some topics on post-graduation as well. Plus, it improves your understanding, even for your GS3 paper. There is a subject known as theory of institutions. It's a topic, it's a paper in economics. जिसमें क्या होता है? Assume करो कि हमको question पूछना है, दो countries हैं, country A, country B, सब कुछ almost same ही है. Labor force का nature same है, जो काम करने वाले. Capital stock जैसे ये capital आपका, ये भी capital है, ये room capital है. पैसा आपकी जेब में capital है. Capital stock भी same है. और एक और variable state of technology भी same है. लेकिन A और B में per capita income में difference है. So क्वेश्चन पूछा गया कि अब सब कुछ ABC, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, क्वालिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक और तीसरा क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी सेम है, तो चौथा फैक्टर क्या है जिस कारण से कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम कंट्री बी से ज्यादा है? तो जो रिसर्चर्स थे लास्ट ईयर जिनको नोबेल प्राइज मिला था, रॉबिन्सन, उन्होंने बोला इंस्टीट्यूशंस हैं, मैटर करता है. ठीक है, एक ऐसा कंट्री ए जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ढंग से इन्फोर्स्ड है कि आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया और स्टेट आपको गारंटी दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपसे आके आपकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता. अगर वो चीज इंश्योर्ड है तो आपके पास इंसेंटिव होगा टू इन्वेस्ट. अगर आप एक कंट्री एज्यूम कर लीजिए जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, आपने अच्छा सा एक शोरूम खोल दिया किसी भी चीज का, ग्लास बाहर लगा दिए, अगर हर तीसरे दिन प्रोटेस्ट होते हैं वहां पे, हर तीसरे दिन अगर आगजनी होती है, हर तीसरे दिन अगर पत्थरबाजी होती है, आपके शीशे टूटेंगे. आप एक बार सही करवाओगे, दो बार सही करवाओगे, तीसरी बार आप बंद कर दोगे, शटर बोलोगे मैं कहीं और जाऊँ.
मैं कंट्री बी जा रहा हूँ. तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर? वो कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्री ए और बी को डिस्टिंग्विश कर रहा है जब सारी चीजें सेम है, जिस कारण से कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम बी से ज्यादा है. सो दैट इज थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट. लेकिन बहुत सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अगर आप एक नया आइडिया बनाते हो, व्हाट इज अ गारंटी कि सरकार उस आइडिया को प्रोटेक्ट करेगा? जैसे इंडिया में डिबेट रहती है रिगार्डिंग जेनेरिक मेडिसिन, अगेन पार्ट ऑफ GS3. सो ये सारे इनसाइट तुमको शायद बैचलर में, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं थे ऑल दीज इनसाइट्स. ठीक है, तो वो इनसाइट तुमको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेंगे, प्लस तुम साइड बाय साइड अपनी तैयारी वहां से भी कर सकती हो. ठीक, एक ही क्वेश्चन था आपका मोस्टली. हाँ, प्लीज. डिपार्टमेंट कोर्स पॉल साइंस ऑनर्स. So again, ma'am is asking about your daily strategy, if not the whole macro strategy. So daily strategy, I did not follow very rigid daily strategy because there is a downside to it. If you set a very rigid, अगर आप बहुत ही rigid daily strategy बना दें कि बिल्कुल मुझे 10 से 1 ये पढ़ना है, 2 से 3 मुझे ये पढ़ना है, होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा ऐसे काम करती है कि अगर आपने किसी एक दिन उसको मिस कर दिया उस बहुत रिजिड टारगेट को, वो अपने आप में एक डीमोटिवेशन बन जाता है अगले दिन शुरू करने के लिए. अगर मैं आज नहीं कर पाया तो कल कैसे करूंगा? एंड देन इट बिकम्स अ स्लिपरी स्लोप. कल नहीं कर पाओगे, परसों भी नहीं कर पाओगे. सो रादर देन दैट, हैव अ फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी फॉर अ वीक. ठीक है, वीकली स्ट्रैटेजी कि मैं, अगर तुम्हें जैसे पीपल कैन हैव वेरी हार्ड टारगेट्स, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर द एंटायर वीक कि मुझे अराउंड 45 या 50 आवर्स वीक में पढ़ना है. तो किसी दिन अगर तुम्हारा 12 घंटा हो जा रहा है तो अगले दिन यू कैन स्किम डाउन ऑन योर स्टडी आवर्स, क्योंकि तुमने कल 12 घंटा पढ़ा हुआ है. नंबर 2, हैविंग दीज वेरी ओवर एम्बिशियस टारगेट्स इज नॉट अगेन वेरी सस्टेनेबल. अगर आपने सुना है मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ट्राई डूइंग दिस. आज पढ़ो 14 घंटे, पढ़ लोगे. कल पढ़ो, कल शायद तुम 13.5 घंटे बाद थक जाओगे, लेकिन चौथे दिन के बाद से तुम नहीं पढ़ पाओगे. सो अगेन, rather than having a very over ambitious target, have a reasonable target, 8 hours, 12 hours. That's enough. That's more than enough for a good day of study. Apart from that, allocation depends on strengths and weaknesses. जैसे मुझे अपने बारे में पता है कि मैं ethics थोड़ा और भी पढ़ लूंगा, GS4 ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया. ठीक है, so I devoted that time on GS1. That is my strength. Studying about physical geography, human geography. अच्छे खासे questions आ रहे हैं. यकीन नहीं मानोगे, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था किसके स्टेटमेंट पे, जितना मुझे लगता है इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट कहा था जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था कि ऑलमोस्ट डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेमोग्राफिक डेथ, समथिंग लाइक ही मेड अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट. तो GS1 में क्वेश्चन आया था कि डेमोग्राफिक विंटर किसे बोलते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और इंडिया के उसमें कॉन्टेक्स्ट में उसका इसका कितना रोल है विंटर का. तो न्यूज़पेपर रीडिंग, अगेन ये वाला पार्ट में किसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग. सो आई, और ये GS1 का पार्ट है, तो आई डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन areas which I counted as my strengths. GS1, GS3, being a student of economics. Apart from that, reading newspapers daily, that's a very important thing. And how to read a newspaper, that's more important than reading a newspaper daily. One suggestion, rather than following multiple newspapers or multiple articles from a website, pick one paper, Express or the Hindu, and go with that paper for a long time, 1.5 years or 2 years, that would be enough. Like, just pick one source. Don't go for multiple sources. Just pick one source, read it for around 1.5 year. You'll have enough content to write a nuanced answer in your GS1, 2, 3 papers. While reading newspapers, what you have to keep in mind is the structure of the article, which is very similar to the structure of your GS mains answer. What does a GS mains answer require? An introduction, one side of the debate, the opposite side of the debate, what the government has done with respect to this problem, and what are the way forwards. Way forwards include your own suggestions plus suggestions from committees and commissions. सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट. अगर एडिटोरियल को देखोगे, इंट्रोडक्शन होता है ऊपर पे, फिर एडिटोरियल क्या करता है, मेंशन करता है इश्यूज को, जो इश्यूज है, अगले पैराग्राफ की स्टार्ट में सोल्यूशन देता है, उस पैराग्राफ के एंड पे इवन कमिटीज को मेंशन करता है जिन्होंने इस पे कोई रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और फाइनली एक वे फॉरवर्ड देकर कंक्लूड करता है. फॉलो दिस पैटर्न जो कि एडिटोरियल में होता है. If you are able to replicate this, you'll be able to overcome the biggest challenge in writing GS mains answers. Any idea what's the biggest challenge in writing GS mains? Framing a concept, right? More basic than that. More basic challenge. Very close. Completing the paper.
That's the biggest challenge in attempting a GS papers is completing the paper. अगर तुम घर आओगे बोलोगे सब कुछ आता है, मैं उसको 3.5 घंटे में कर दूंगा, लेकिन वहां पे केवल 3 घंटे होते हैं. तो अगर इफ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, वही तो फ्रेमवर्क बन जाता है जो तुम्हारा पॉइंट है. कैसे क्वेश्चन आया अब तुम्हें पता है, पिछले 1.5 साल से तुम एडिटोरियल पढ़ते हुए आए हो, फटाफट तुम्हारे पॉइंट्स निकलेंगे उससे, और उसी पैटर्न में निकलेंगे. तुम वहां बहुत मैकेनिकल हो जाओगे, जो कि रिक्वायर्ड होता है. यू हैव टू राइट 4000 वर्ड्स इन 3 hours. ठीक है. सो स्ट्रैटेजी नंबर 2 विद इन दिस डेली स्ट्रैटेजी वुड बी टू स्पेंड good amount of time on your newspaper. For me, that was around 2.5 hours. Now, this might come as a surprise to many, but because I did not take any coaching, so जितने भी मेरे वो थे notes थे, सब पेपर से बने हैं. So 2.5 घंटे के आसपास I would spend on newspapers. आर्टिकल पढ़ो और उसको नोट डाउन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फ्यूचर में अगर उससे संबंधित कोई आर्टिकल आता है, तो उस आर्टिकल में अगर कोई नए आर्ग्यूमेंट्स हैं या कोई नया डेटा है या रिवाइज डेटा है, तो वापस नोट्स में जाके उसको रिवाइज कर दो. एंड फॉर दिस ऑनलाइन नोट्स आर बेटर देन handwritten notes, because you can use the search function, you can easily delete it or edit it and keep your answers up to date. So this was basically my daily strategy. Louder. I have a question for this reason, like how we can just optimize to this reason. As we know, our background is totally human. Like from the class, we have never studied math. Especially, I'm talking about the math section. So whenever we are just watching the lectures at that time, we practice a lot, like how to find the numbers of the things like that. So from the number system. So, but the question is that how we can just like whenever I'm just attempting the questions from the previous question, at that time for it like what we did. The question is very different from what I just practiced. So that's the thing I'm just facing a lot. Like especially for math. CSAT quant. Yeah. Quant question. So like yes. Okay. That is the first thing. And how do you do it? And the second thing is that like how we can just analyze the PYQs. Like suppose that if I have knowledge for that section, so definitely I will attempt that question. But if I don't have knowledge about it, so we should just go to the book and just read down, read it, and just again come and attempt that question. Yeah. What would be the best way that we can just analyze? Sure. There are 2 questions. Question 1 is about CSAT. Question 2 is about PYQs. Again, you have 2 subparts in question 1. What should be the strategy and what my strategy was. I'll combine both these subparts in one answer. First and foremost, know this, and you already know this. You don't have to score very high marks in CSAT. The only thing is you have to qualify it. All right? The marks don't count in your general merit list. That's part 1 of the answer. If you keep that in mind, the second part will be very easy. Part 2 is you need to know the sections within CSAT. Reasoning, RC, and quant. Right? Part 3 or step 3 of a strategy should be to identify your strength. So you ask me what I did. My strength is RC, reading comprehension. All right? So I would attempt all reading comprehension questions, all 27 of them. So even if I'm very highly wrong, in that case, the score would be something like 22.5 or 24.3. All right? Once you have identified your area of strength, improve it so that you're able to attempt almost all the questions from that section. There might be some people from math section in this classroom. So your strength would be more towards quant and reasoning, right? So try doing all those 27 questions from quant and reasoning. If your strength is quant, if your strength is reasoning. For me, it was RC. So I attempted all 27 and I roughly got 23, 22 right. That's a good score to reach beyond 50, at least 50. Now, once you've identified your strength, identify your second best strength. For me, it was quant. Honest answer, I cannot attempt those reasoning questions. For the very basic reason that I have never practiced them. And those questions are something which you need to practice before attempting in the answer hall. So for me, it was quant. So after attempting around 27 questions of RC, you should go for around 10 to 12 questions of that section in which you have more confidence in the third section. All right. So now you are in total of around 40 questions. Add, if you want a very practical solution, add just 5 more questions from section 3. All right. Now you reach question number of 40, total number of 45. And if your accuracy or hit rate is around average, you would attempt around 33 or 34 right questions, and that would take you beyond your threshold, the 1/3 threshold. Right. So don't waste too much time on CSAT because it's just a qualifying exam.
it won't benefit you later on during your main stage or even in your interview stage. Use a very smart strategy of identifying which section is your strength. Attempt almost 25 questions from that. Then identify the second best option you can do. Attempt 12 to 13 questions. If you're able to do 45 questions, all right, so know your comfort zone. So this is the X number of questions beyond which if I appear or beyond which if I attempt, the negative marks will be more than the positive marks. So attempting those questions is not very sensible. All right. So that is one. Your part 2 was about PYQs. Regarding this, I never followed or I did not refer to PYQs very much because what it does is, there is a phrase pigeonhole, right? What it does is, whenever you read that topic, your mind would always go to the PYQs. And you might have this tendency to confine your preparation to the topic in the PYQ. There's a very good possibility that in the next mains exam, UPSC asks you something very, very different, which it is doing, especially in case of international relations. So if people from political science background, plus those who are taking PSIR, if you go back and take a look at international relations questions from GS2 for the past 3-4 years, they've completely changed. They've become very, very dynamic. All right. So PYQs won't help you. PYQs will give you some fodder points, but they won't help you in writing those answers. For that, you'll have to build content. So initially, your aim should be to build content, enough content, using newspapers, using some good study material, using some good videos. Utilize YouTube for your GS3 preparation, especially science and tech. Rather than reading something very boring about nuclear fusion or AI, what's a very good video on AI? There are very specific channels. For example, Real Life Lore. All right, if you want to note this down, there's Real Life Lore. There is Economics Explained. All right, and similar channels which produce infotainment. That's a portmanteau of information and entertainment. So you'll be able to recall all these things later on more easily if you've watched videos in comparison to if you've just read them. Because visual memory is more dynamic than just if you read something. Right? So before attempting or before relying solely on PYQs, give some time to build content. Once you've built content, you will not only be able to answer your PYQs, but also any other bouncer that is thrown at you by UPSC. So that's my take on PYQs. Yes. So my first question is about note making. Like, मुझे क्या feel होता है note making करते वक्त, like I have to make notes और उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा तो मैं notes से ज़्यादा books को prefer करता हूँ. Like books में कुछ नहीं रहेगा अगर मैं book पढ़ूँगा. तो आपकी like कहना कि notes like पहले ऐसे कहते हैं कि आप whole syllabus को एक साथ पढ़ लो पहले, फिर बाद में आप notes बनाओ या साथ-साथ notes बनाओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिला कि आपका रिवीजन के लिए क्या था कि कुछ कहते हैं कि आपको वीक में कोई एक दिन दे देंगे करना आपको रिवीजन करने के लिए और वीक के लिए कि आपको हर दिन जो आप पढ़ते थे उसमें रात को लाइक सो दो क्वेश्चन है, एक रिगार्डिंग नोट मेकिंग, अदर अबाउट रिवीजन. तो नोट मेकिंग का मेरा ये था, ये इसमें आपको और जगह से भी इनपुट लेना चाहिए, केवल मेरे पर रिलाई नहीं करना चाहिए. स्टैटिक पोर्शन के मैंने नोट्स कहीं नहीं बनाए. स्टैटिक पोर्शन इतना ज्यादा है कि उसको रेप्लिकेट करना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. स्टैटिक पोर्शन से मेरा मतलब क्या है, मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम जो बुक है वो हो गया, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गई. अगर आप उसको दोबारा किसी और कॉपी में लिख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप सेम चीज को कहीं और लिख दे रहे हो नोट्स बना के. ठीक है. तो स्टैटिक पोर्शन में मेरा स्ट्रैटेजी था उस बुक को बहुत ढंग से अंडरलाइन करना मल्टीपल स्टेजेस में, जिसका जो पार्ट इसी आंसर का सेकंड पार्ट है. डायनेमिक पोर्शन में मैंने अच्छे खासे नोट्स बनाए हैं. रफली 500 पेज का पीडीएफ मेरे पास डायनेमिक पोर्शन का है. ठीक है, फ्रॉम 2-3 ईयर्स और कंप्लीट 4 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन. और वो सब काम आता है. वाई? एक बहुत ही मतलब ऐसे थ्रोन अराउंड फ्रेज है, करंट अफेयर्स. यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, यूपीएससी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर्स which might be very very recent, even what is happening today. Contemporary affairs जो themes पिछले 2-3 साल से न्यूज में है, something which is very very important. Energy dependency इंडिया की. This is not something very new because Iran-US war is going on right now and the Strait of Hormuz has been blocked. Energy dependency वाला इशू पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा, जब से आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है जब से वो आया है, so energy security काफी बड़ा टॉपिक बन चुका है. ठीक है. So UPSC will ask questions based on what India has been doing in the past 10-15 years, domestic policy, foreign policy, plus what India should do in the future. Last year question आया है GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में. यूपीएससी ने दो चीजों को जोड़ दिया, डिप्लोमेसी को जोड़ दिया विद इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट.
कि इंडिया की डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में कैसे होनी चाहिए ताकि हम लोग एनर्जी सिक्योर रहें। उसके लिए तुम्हें एनर्जी सिक्योरिटी की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स बनाना भी जरूरी है। क्यों? डायनेमिक पोर्शन को तुम जैसे स्टैटिक तो वो है, लक्ष्मीकांत तुम्हारे रैक पे हमेशा पड़ी रहेगी। अगर तुमको रिवाइज करना है एग्जाम से 5 दिन पहले, उसको उठाओ, रेलिवेंट पेजेस देखो और रिवाइज करो। लेकिन जो डायनेमिक पोर्शन है, जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाला पोर्शन है, उसमें नोट मेकिंग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लास्ट में आपके पास एक डाइजेस्ट होगा, ठीक है, एक तरीके से एक समरी होगी ठीक ठीक चीजों की, जिससे आप फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग नोट मेकिंग। हाँ, तरीका क्या है नोट मेकिंग का, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आई प्रेफर टेक्नोलॉजी ओवर मैनुअल नोट मेकिंग। मैनुअल नोट मेकिंग इज वेरी वेरी टायरसम, इट्स नॉट प्रोडक्टिव, ठीक है। तुम पेन से कोई चीज लिखोगे, 1 महीने के बाद आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर में तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी सर के आर्टिकल आया, उसमें तुमने कोई 2-3 पॉइंट्स देखे, अच्छे पॉइंट्स, वो लिख दिए। हो सकता है 2-3 महीने बाद गुलाटी सर खुद अपना एक आर्गुमेंट रिवाइज कर दें कि 3 महीने पहले सिचुएशन कुछ और थी, जिस सिचुएशन में वो आर्गुमेंट सही था, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, आर्गुमेंट ये है। अब तुम पेन को लिखा हुआ वो नहीं कर सकते, काट पीट के वो काफी हौच पौच हो जाएगा। अगर उससे अच्छा तुम्हारे पास क्या है, कोई वर्ड पैड है, कोई ऑनलाइन नोट मेकिंग ऐप है, सर्च फंक्शन तुम यूज करोगे, एग्रीकल्चर पे जाओगे और बस उस आर्गुमेंट को तुम रिवाइज करोगे या डेटा को रिवाइज करोगे। डेटा भी हर 3-3 महीने में रिवाइज होता रहता है। सो नोट मेकिंग वाला ये पार्ट हो गया। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? अच्छा, रिविजन का अगेन जो ये मैम ने इनिशियली स्ट्रेटजी वाली बात की थी, हैव वेरी प्रैक्टिकल टारगेट्स। तुम आज से करके देखो, आज एक टारगेट रखो कि मैं रोज रात को रिवाइज करूंगा। मैं तुमको स्टाम्प पेपर में तो लिख के नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमको गारंटी से बोल सकता हूं कि तुम 1 हफ्ते बाद नहीं कर पाओगे, डेली रात को तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगेन दैट्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल टारगेट अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से। उससे अच्छा है कि तुम एक थोड़ा बड़ा इंटरवल रख लो हफ्ते का, कि हफ्ते के एंड पे मैं ये सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा। आपको उससे अच्छा एक तरीका बताता हूँ रिवाइज करने का, जो आजकल वोग में है काफी, उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर किसी को पता हो तो इसके बारे में, एक्टिव रिकॉल पता है? मैं मंगवाने वाला था। न्यूज़पेपर है किसी के पास आपके? फिजिकल कॉपी है यहाँ पे किसी के पास भी न्यूज़पेपर? एक बार देना नीचे। न्यूज़पेपर नहीं है? अच्छा कोई नहीं, चलो अज्यूम करो न्यूज़पेपर में आज एक आर्टिकल आया रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो वहां पे एक्टिव रिकॉल क्या बोलेगा तुमको? अगर तुमने साइंस एंड टेक पढ़ा हुआ है, साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है प्रीलिम्स का, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे हो, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का जो बेसिस है वो क्या है? सब एटॉमिक फिजिक्स है, उसका बेसिक मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल फॉर फिजिक्स। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे हो तो वहीं पढ़ते पढ़ते एक्टिव रिकॉल बोलता है कि आप मन में जो बेसिक पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड मॉडल के, उनको रिवाइज कर लो वहीं पे। आपको दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको वहीं पे कनेक्ट करो उससे, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो आप पढ़ रहे हो। अगर हो सकता है कनेक्ट तो होगा, उस मॉडल के अंदर आता है। आप ईरान यूएस उसके बारे में पढ़ रहे हो, वहीं पे एक्टिव रिकॉल करो कि इंडिया के इस एरिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या क्या है। INSTC जो प्रपोज था पहले से, फिर बाद में वहीं से नीचे से IMEC बाद में प्रपोज हुआ, ठीक है, और शाहबहार पोर्ट है, उस पर डील क्या हुई थी। अगर आप वहीं, भले आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको वहीं बैठे बैठे एक्टिव रिकॉल करोगे, आपको बार बार नोट्स में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स पे लास्ट में आप जा सकते हो। तो रिवीजन के मल्टीपल तरीके हैं। वो हार्ड एंड फास्ट तरीका पहले वाला कि शाम को बैठ के दोबारा से 10 बजे के बाद आप जो लिखा हुआ है आपने मैनुअली नोट टेकिंग की है, उससे अच्छा आप ऑन द स्पॉट एक्टिव रिकॉल करोगे तो एंगेज रहोगे, ठीक है। सो दैट इज इन माय व्यू अ मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग इन कंपैरिजन टू टेकिंग अप योर नोट्स होल स्केल एंड देन रिवाइजिंग देम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू। पहले एक साइड यहाँ से बहुत कम पूछा है, इस साइड से सबका है वो, इसके बाद तुम करोगे। बोलो, एक सेकंड आपका डिपार्टमेंट क्या था? तुमने क्या ऑप्शन सोचा है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, major mistakes, especially in academic approach, that can take me away from my success. And my second question is, should I practice writing research paper as additional activities? Because my interest is also in writing research papers. Okay. Can you clarify the first question a little bit more? My first question is, I'm just at the beginning of my preparation. So what are the major mistakes that I should not commit? Okay, mistakes. Can take me away from my success. Okay, mistakes. Sure.
सो पार्ट 1 मिस्टेक्स, अगेन लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है जो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 1 to 1 ज्यादा सही रहेगा, या कभी ऐसा कोई ग्रुप बन गया तो उसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ये जानना मिस्टेक्स में क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सबसे बड़ा, जिस दिन तुम वो सीख जाओगे न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है, वो मतलब वो दिन तुम्हारा ऐसा होगा जहाँ से तुम अपने डेली शेड्यूल में आधा घंटा 1 घंटा जोड़ लोगे, क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे हाफ एन आवर या 1 आवर जाता है रीडिंग मटीरियल विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट रेलिवेंट। अंडरस्टैंड, द न्यूज कैन बी इंपॉर्टेंट बट नॉट रेलिवेंट फॉर योर ओन प्रिपरेशन, ठीक है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। सो दैट इज वन मिस्टेक दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल शुड मेक। अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो बाद में तुम सीख नहीं पाओगे कैसे उसको नहीं करना है। पहले दिन से तुम वो मिस्टेक अवॉइड नहीं कर सकते, तो करो उस मिस्टेक को अभी। एक दिन आएगा जब तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये रेलिवेंट है और ये नहीं है, और एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम ये बोल सको ये ना केवल रेलिवेंट है, ये रेलिवेंस के स्केल पे ABCD में A है, B है, C है, D है। वो आएगा रेगुलर तुम्हारी रीडिंग से, न्यूज़पेपर से, किसी भी चीज से। मिस्टेक नंबर 2 वुड बी टेकिंग ओनली वन साइडेड अप्रोच किसी भी चीज का। UPSC रिक्वायर्स यू टू राइट आंसर्स विच आर मल्टी डायमेंशनल और हैव मेनी एस्पेक्ट्स। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, GS3 में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस, ठीक है, और तुमने उसमें एक पॉइंट ये डाल दिया कि इंडिया को सूनर और लेटर कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पे कम हो जाए, बोथ क्रूड में और नेचुरल गैस में। इसका कोई काउंटर हो सकता है यहाँ पे जो कि इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा? एटलीस्ट एक बहुत बेसिक काउंटर कि हमने अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से ऑलमोस्ट खत्म कर दी, हमारे लिए अच्छा है। केवल अगर इंपोर्ट बिल की बात की जाए, इंपोर्ट बिल और डिपेंडेंसी की बात की जाए तो हमारे लिए अच्छा है। किसी को दिक्कत है? क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या आज के डेट पे एनर्जी सिक्योरिटी और सॉवरेंटी। इसे काउंटर ढूंढो, सोचो काउंटर क्या हो सकता है। करंट अकाउंट सबने पढ़ा है ये? अच्छा, ये आप इको वाले बैच से नहीं हो ना? जब आप कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे तो उसमें करंट अकाउंट में एक और चीज आती है, रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा भी इंडिया में आ रहा है, और उसका एक ठीक प्रोपोर्शन कहां से आता है? इन्हीं कंट्रीज से आता है, इसी सेक्टर में काम करके आता है। अगर हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी इस सेक्टर से घटेगी, कंपैरेटिवली और डेवलपिंग कंट्री की घटेगी, तो वहां पे सेक्टर्स काफी वीक हो जाएंगे। वहां पे जो लोग हमारे अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को उस स्केल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा जितना भी मिल रहा है, तो जो इनवर्ड रेमिटेंसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। तो ये क्या एक नुआंस्ड आंसर है उसको, तो वो पॉइंट उसको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि यूपीएससी तुमसे चाहता है कि तुम एक काफी मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो, तो वो मल्टी डायमेंशनल आंसर तुमको, जैसा कि तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि मिस्टेक क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो वो तुमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम एक मल्टीपल व्यू पॉइंट से आंसर लिख के आओ, ना कि एक सिंगल व्यू पॉइंट से। जैसे बोलते हैं कि हमको कंप्लीटली सरकार को सपोर्ट करना है, या हम पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसाइज तुम ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम्हें देके आना पड़ेगा। हर पॉलिसी कौन बनाता है? एक इंसान बनाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाता है, और गलत हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, तो पॉलिसी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो तुमको अच्छे पॉइंट्स भी गिनाने हैं, सो एंड सो स्कीम ऐसे काम कर रही है, लेकिन कुछ क्या भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, वहीं से तुम्हारा वे फॉरवर्ड आएगा। तो मिस्टेक नंबर 2 है नॉट टेकिंग अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन योर आंसर, ठीक है। तो अगेन किसका पार्ट होता है? मल्टीपल अपने अप्रोच का। और तीसरा पार्ट क्या है, कह सकते हो चीजों को इंटरलिंक करके ना पढ़ना। अगर कोई सोशल इश्यू है, ठीक है, कोई भी सोशल इश्यू है, वो तीनों पेपर का पार्ट है, GS 1, 2, 3 का पार्ट है। GS 1 का इंडियन सोसाइटी, GS 2 का सोशल जस्टिस, GS 3 का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसको जब पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि तुम उसका आंसर रिप्रोड्यूस कर सको A, B और C में। ये एक बहुत मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे बोला था कि ये उसने फिगर आउट किया था कि बीटेक वाले बच्चे यूपीएससी क्यों निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा। बीटेक वाले बच्चे बहुत रिसोर्सफुल होते हैं, वो एक सिंगल डेटा को जगह जगह यूज कर सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। वो अपनी क्रिएटिविटी वैसे उन्होंने पढ़ा हमसे बहुत कम होता है, उन्होंने बस इतना पढ़ा होता है, लेकिन वो आता है उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे उसको GS 1 में यूज किया जाए, कैसे 2 में यूज किया जाए, कैसे 3 में यूज किया जाए। तो वो मिस्टेक मत करना जिसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसको मैं केवल GS 2 के लिए पढ़ रहा हूँ, या इसको मैं केवल GS 1 के लिए पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसे पढ़ोगे तुम उसको GS 1, 2, 3 तीनों में यूज कर सकते हो। तो मोरल से 3 मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। पहली मिस्टेक की लगातार तुम लंबे टाइम तक जो इररिलेवेंट मटेरियल्स को भी पढ़ रहे हो। दूसरा, हैविंग अ वेरी कन्फाइंड व्यू व्हाइल राइटिंग आंसर्स। एंड तीसरा, जो हाँ क्रिटिसिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये है ये लास्ट स्टेज का इंटरव्यू वाला।
अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से तुम एक अच्छा सा कुछ साइड में चीज शुरू कर सकते हो अपना करना एज अ हॉबी, जो बाद में आपको काफी मदद करेगी। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है टिल मेंस। यूपीएससी कभी ये वर्ड यूज ही नहीं करता इंटरव्यू, क्या यूज करता है? पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट। वो केवल तुम्हारी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। तो अगर जो तुम रिसर्च पेपर है, अगर किसी गार्डनिंग भी है बेसिक, किसी की कुकिंग भी है, अगर आप उसी से अपनी पर्सनालिटी बाहर निकाल के आ सकते हैं इंटरव्यू में, यू विल गेट वेरी गुड नंबर्स। कर सकता है, लेकिन दोनों का नेचर बहुत अलग है, याद रखना। रिसर्च पेपर का नेचर क्या होता है? एक्सपेंसिव, किसी चीज को बहुत ढंग से डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव होता है। यूपीएससी में आंसर तुम्हें कैसे लिखना है? 2 पेज में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देनी। तो अगर तुम उस वाले अप्रोच से यहाँ लिखोगे, इट विल इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। ऐसे राइटिंग स्किल काफी इंप्रूव कर देगा, पैराग्राफ राइटिंग स्किल काफी इंप्रूव कर देगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब तुम आंसर लिख रहे हो तो एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा मत लिखो। अगेन वही वाली बात, मल्टीपल डिमेंशन वाली बात। तो रिसर्च पेपर वाला अप्रोच यहाँ पे जीएस पेपर में वो अप्लाई करें, लेकिन इंडीड इट विल इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स इन एसे एंड एथिक्स, दैट इज फॉर श्योर। We'll take only last question. Louder. अच्छा, so I think I've already answered the second part of your question regarding my motivation, public services, my parents, ECA, plus the kind of subject I read during my graduation, post-graduation days. Part 1 regarding coaching, again, I don't have a very concrete or an unambiguous answer to that question because I myself did not take coaching. Many people who took coaching benefited from that decision. So I cannot sit here and say that you should not or you should take coaching. That's up to you. All right. But what I must clarify is that I did take test series before prelims, before mains, and IGP before my interview. So that I must clarify. Regarding approach, if you're not taking coaching, just do one thing today. All right. Take 2-3 newspapers. One is the Hindu, one is Express, and one some economics newspaper. And take the daily current affairs DCA PDF of any major coaching institute. You'll find that those people have prepared their content from the very same papers that you're reading. They've used the very same arguments that the authors in that article from that paper have used, which you would be reading yourself first time. So if you're not reading some coaching centers material, you're not missing out on something very substantive because their source and your source is almost the same. कोई भी XYZ कोचिंग कहीं मतलब ऐसे पैरेलल यूनिवर्स से कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं, पेपर से कर रहे हैं, जो तुम भी पढ़ते हो। सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो तुम एग्जैक्ट वही चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हो जो कोचिंग वाला करेगा। अंतर क्या होगा? तुम्हारे पास एक कहानी होगी, बैकड्रॉप होगा। कभी एक चीज करना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खाली जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स पढ़ के देखना। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि तुमने पीछे का जो बैकड्रॉप है, जो स्टोरी है, उसको नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुमने स्टोरी पढ़ के खुद से नोट्स बनाए हैं, रिविजन में फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी देखो जैसे पीछे क्या है, अगर ये वॉल ना हो तो क्या इस पे मैं ऐसे वो जो बोर्ड पे पेपर पटकाने के लिए पिन होती है ना, विदाउट अ बोर्ड कैन आई स्टिक पिन्स इन? नहीं कर सकता हूँ। वो पिन्स क्या है? बुलेट पॉइंट्स है तुम्हारे। बोर्ड क्या है? स्टोरी है पीछे वाला। ठीक है, जहां तुम पिन्स केवल कहाँ अटकाते हो? जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां से पेपर गिर सकता है, तो वही तुम्हारे नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन पीछे की स्टोरी तुम्हें पता होनी चाहिए बाय रीडिंग योर ओन मटेरियल। तो कोचिंग अगर नहीं भी कर रहे हो तो यू कैन फॉलो a very practical routine of reading newspapers, reading some very good current affairs magazines from these coaching institutes, और अपने नोट्स बनाओ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि वो नोट्स तुम रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी का जो एग्जामिनर होगा वो भी सेम न्यूज़पेपर पढ़ता है जो तुम पढ़ते हो। ठीक है, सो कोचिंग का मैं नहीं कह सकता whether you should take coaching or not, वो तुम पे है। But even without coaching, you can prepare a substantial amount of notes which can be used readily at the end. So, yeah. Sure. Keep it short. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, अभी हमारे साथ सेमेस्टर रिजल्ट्स आए, इसमें किसी का 6 है, किसी का 7 CGPA SGPA, किसी का 8, किसी का 9। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर ये कॉलेज में जो SGPA CGPA जो फैक्टर होता है, ये यूपीएससी में मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और अगर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं कॉलेज में, देखकर यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ
फैक्टर है सर? दोनों क्वेश्चन क्या कहते हैं आंसर मैं करूँगा। पहला क्वेश्चन को तुम थोड़ा बोलो, क्या परफॉर्मेंस यहाँ का वहाँ मैटर करता है? पहला आंसर सिंपल है, नो, कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तुमने इस क्लासरूम के अंदर क्या किया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने जाके उस दिन मेंस में क्या लिखा वो फर्क पड़ता है। तुमने उस दिन जाके आधे घंटे के इंटरव्यू में क्या बोला वो फर्क पड़ता है। तुमको बस पास होना है ग्रेजुएशन में, ठीक है। लेकिन वो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट नहीं है। अगर तुम यहाँ अच्छा करोगे, एक अच्छा एक वो बन जाएगा, आदत बन जाएगी चीज़ें अच्छा करने की, तो वहाँ भी अच्छा करने के चांसेस हैं। कोई गारंटी नहीं वहाँ भी अच्छा करोगे, लेकिन यहाँ का वहाँ से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई हॉबीज वगैरह आप अपनाओ, अच्छी हॉबीज अपनाओ। एक ने जैसे क्या बोला था, आपने रिसर्च पेपर बोला था, वैसे आप कोई भी हॉबी, मतलब उसका तो ये सीन है कि आप क्या बोलो, मैं बस चीटियों को देखता हूँ, लिख दो आपको। अगर ढंग से प्रिपेयर किया है, चीटियों को देखने से तुम क्या डिराइव कर सकते हो? अगर तुम ढंग से प्रिपेयर कर दोगे, तुमको मुझसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। जहां मैंने जाके आलतू फालतू बातें बोली कि वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, वो लोग बस क्या देख रहे हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि तुमने चीटियों को देखने से बस खाली उनको ऑब्जर्व करके तुमने क्या क्या चीजें डिराइव की। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ह्यूमन बींग्स को वैसे ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए जैसे चीटियां ऑर्गेनाइज होती है। अगर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आंसर है, बहुत क्रिएटिव आंसर है, तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे, तुम बहुत एक अच्छा इंप्रेशन वहां पे देखे आओगे। सो स्टार्ट डेवलपिंग अ हॉबी विच इज क्रिएटिव, थोड़ी हटके है। और अगेन हटके नहीं भी है, रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग? ठीक है, उससे तुमने क्या सीखा? मैंने सिनेमा लिखा था, मुझे सिनेमा देखना काफी अच्छा लगता है, और मूवीज देखना। उससे पूछा, वो सिंपल चीज मुझसे पूछी कि सिर्फ ऐसे शुरू करते हैं, होनी चाहिए बात, ऐसे शुरू होता है वहाँ पे। तो वहीं से तुम्हारी पर्सनैलिटी गेज करते हैं। सो यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग विच यू कैन यूज लेटर ऑन इन योर इंटरव्यू। I'm sure everyone present here is feeling more confident, more focused, and more inspired than before. As we come to the end of this wonderful session, today was not just an interaction. It was a reminder that success is possible for anyone who is ready to work with dedication and patience. On behalf of UDAN, Civil Services Society, IQAC, and Shaheed Bhagat Singh College, I extend our heartfelt gratitude to Mr. Aditya Pathak for inspiring all of us today. We also thank our respected teachers and all the students for making this session successful. Let us hope, keep dreaming, let us keep working, and one day someone from this very hall will be standing on this stage. Thank you everyone. Have a wonderful day. I will take 2-3 minutes only. Don't worry. So, first of all, we are grateful that Mr. Aditya accepted this invitation and we had this wonderful and fruitful discussion. Many of time, what just happened that यहाँ पर हम experts को बुलाते हैं and we just had a session और वो अपनी strategy बता देते हैं. But this was a different approach जहाँ पे आदित्य ने आपके 1-to-1 queries को आंसर किया, इंडिविजुअल क्वेरीज को आंसर किया, अपनी जर्नी बताई कि उसमें उनका क्या अप्रोच था और आप क्या कर सकते हैं. सो आई थिंक ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा. लेट मी टेल यू अ इंटरेस्टिंग फैक्ट. जब हमें पता लगा कि आदित्य ने ये पेपर क्लियर किया है और ही गोट 189 रैंक, तो सिंस हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है. अभी जैसे सोशल मीडिया पे अभी कुछ बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था तो कोई भी चीज चल जाती है, बट ऐसा बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है भी या नहीं है. तो हमें फैक्ट चेक करना था कि आदित्य पाठक क्या भगत सिंह से है भी या नहीं, या इवनिंग से तो नहीं है. अगर इवनिंग से है तो हम उनको कन्वे करेंगे. तो एक चैलेंज था कि हमें उसको चेक करना था. तो 2020 के बाद आपके जो डेटा है वो डिजिटाइज्ड है, मतलब हम एक क्लिक्स में आपके इंफॉर्मेशन को 2 मिनट में निकाल सकते हैं. तो 2020 तक हमने डेटा को चेक किया, वो डेटा नहीं मिला, देखते उसमें नहीं थे, ऑब्वियसली बात है वहां पे नहीं होने थे. तो अब हमें जानना था कि उसको चेक करना था रजिस्टर वाइज. जब से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है 1967 से, तो एक एक बच्चे का रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. आपकी अच्छी चीजों का भी है, खराब चीजों का भी है, रिकॉर्ड है.
ठीक है, आपका परफॉर्मा बना हुआ है, हमारे पास एक प्रोफाइल डेवलप्ड है। तो अब हमने एडमिन में काम दिया कि आपको एक एक रजिस्टर को चेक करना है, एंड देयर आर 2-3 पर्टिकुलर कोर्सेज जहां पे आपको चेक करना है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पाया था। और ये एक आइडिया था कि he had economics in his optional और in his undergrad, बट ये नहीं पता था कि वो इकोनॉमिक्स मेजर ही था या इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही था। तो 2-3 ऑनर्स के कोर्सेज के रजिस्टर्स को चेक किया गया, और तब जाके 2014 के रजिस्टर में जाके मिला कि 2011 में आदित्य ने इस कॉलेज में एनरोल किया था, 2014 में उन्होंने पास आउट हुए, वो 2019 में ये आए थे, अपनी डिग्री लेकर गए। जो इन्होंने 2019 में और अपना नंबर 2011 में लिखवाया था, वो दोनों ही नॉट रीचेबल थे। इनके फादर का नंबर रीचेबल था, वो हमारे रिपोर्ट में था। हमने इनके फादर को फोन किया, उनसे कंफर्म किया, तो ऐसे हुआ डेटा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये मैं बैक हैंड में स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है, आपके लिए तो है ही है, पर हमारे लिए आपसे ज्यादा होता है, वो आप जानते नहीं है। ठीक है, फिर आदित्य ने बताया कि हिज रियल यंगर ब्रदर वाज आल्सो पार्ट ऑफ SBSC एंड नाउ सर्विंग एज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी। तो दिस इज आल्सो, आपने बहुत सारी चीजें पूछी हैं, लेकिन एक चीज पे गौर नहीं किया। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। I got admission in economics honors in CVS in 2014, and he was way more senior to me. So he passed out in 2014, and I was getting admission in CVS in economics honors in 2014. कितनी मेहनत लगती है, कितनी मोटिवेशन, कितना डिसिप्लिन रहना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। 4th अटेम्प्ट और एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट था, है ना। इसके बाद क्या था, क्या कर सकते थे, उस पे अब तक की सारी जर्नी पे ना पूर्ण विराम लग जाता, पर्सन चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि करना क्या किया अब तक, अल्टीमेटली कुछ तो करना है ना। और ये बर्डन बड़ा ज्यादा होता है, और थोड़ा सा सिंस वी आर इन स्टिल अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो बॉयज पे थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है ना। वी आर इवॉल्विंग, वी आर मूविंग, ये बात सही है। तो सब कुछ ठीक है, पर प्रेशर को हैंडल करना, सिंसियर रहना, डिसिप्लिन रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हो नहीं पाता। और अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया। अब इकोनॉमिक ऑप्शनल कहने के लिए ठीक है, बट अपने आप में बड़ा टफ है। उसके अंदर 2 पेपर आएंगे, हम डिस्कस कर रहे थे। पेपर 1 फिर भी स्टैटिक है, मतलब उसके अंदर मॉडल्स हैं, वो ठीक है। पेपर 2 पूरा ऑर्गेनिक है। जब नेक्स्ट ईयर आप पेपर देने जाएंगे, तो नोट्स पेपर 2 के खत्म हो चुके होंगे, वेस्ट हो चुके होंगे। वेस्ट एज इन पूरे नहीं, वेस्ट हो चुके होंगे, और कंटेम्प्रेरी ज्यादा आता है। अब उन्होंने बताया कि वो इस मामले में अड़ियल थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इकोनॉमिक ऑप्शनल ले लिया है, तो मैं पेपर निकालूंगा तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से ही निकालूंगा। तो बड़ा ध्यान से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, है ना। तो ठीक है, करना है। कल आज आदित्य यहाँ आए, हम कोशिश करते हैं कि हर साल में आपको या तो किसी एलुमनस को बुला लें, या किसी एक्सपर्ट को बुला लें, या किसी सिविल सर्वेंट को बुला लें और आपसे इंटरेक्शन करा लें। हमारा पर्पस, मूल उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारी नौकरियां लग चुकी है, ये कॉलेज चलता रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में यहाँ लेके आना है। हम चाहते हैं आज आदित्य यहाँ बैठे हैं, कल आप यहाँ बैठे हो, और हमारे पास यहाँ बिठाने के लिए चेयर्स ना हो, हमें दूसरी जगह जाना हो, है ना। तो कल को ऐसा कुछ करिए, जरूरी नहीं है यूपीएससी से ही करना है, किसी और माध्यम से करिए। पर जब आप कुछ करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने कॉलेज का, कितने लोगों का आप नाम रोशन करते हैं। तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है आपके पास, और कितने लोग आपसे खुश होंगे। अभी आदित्य आपको बताने लगेंगे, तो वो बताएंगे, अगर आप पूछना कि पेपर क्लियर होने के बाद बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोगों का फोन आया होगा जो आज तक बात ही नहीं करते थे, अब कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो कितने लोग खुश होंगे आपकी सक्सेस से। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप बड़े सीरियस भी हैं, सिंसियर भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और एक लास्ट बात, बी द चेंज यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। ये मत कोशिश कीजिए कि मैं जब सिविल सर्वेंट हो जाऊंगा तभी चीजों को ठीक करूंगा। अगर आप अपने एंड पे जिस भी हद तक, जिस भी पॉसिबल वे में
समाज की, अपने परिवार की, अपने इंस्टीट्यूशन की मदद कर सकते हैं तो करिए, किसी चीज का वेट मत करिए। समझ रहे हो? तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे आप यही चीज सीखेंगे। ठीक है, विद लास्ट नोट, क्योंकि मेरे को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर परवीन शुक्ल हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, बड़े अजीज कवि हैं, देश के बड़े मान्य कवि हैं। तो इनके डिसिप्लिन की 4 अटेम्प्ट और एज का लास्ट अटेम्प्ट, IES भी दिया, DEPR डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च का पेपर भी दिया, पर हिम्मत नहीं आई। ठीक है, तो एक लाइन है, न जाने कितने अनुभवों का यही है बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, और जिंदगी की उलझनों से जूझ कर जाना है मैंने, ना कोई जीत अंतिम ना कोई हार अंतिम।